students, I am Shashank, your maths teacher for today's class. Today we are going to study about whole numbers. This is just a part 1 of the topic. We will study up to exercise 2.1 only. This is the second chapter of class 6 mathematics. So let's continue. This will be our flow of learning. We will learn about numbers, types of numbers, natural numbers, predecessor, successor, number line, and then addition and subtraction on number line. And then at last, we will do some exercise, which is exercise 2.1. Okay, so let's start. So before starting numbers, we must know about the types of numbers, natural numbers and whole numbers. We all know numbers 1, 2, 3, 4. These are countings, है ना? So these counting, the numbers which we use for these countings are known as natural numbers. Okay. So from where natural numbers start? Natural number starts from 1. Okay. Now what if we start counting from 0? Right from 0. What if I ask you to count from 0? Or add a number to the series 0. Okay, then the whole number series will become whole numbers. Okay, then the numbers we say, collection of numbers we say whole numbers. Okay, let's move on to next. Now this is a pictorial representation of natural numbers and whole numbers on the number line. With the help of number line, I am trying to explain you natural numbers and whole numbers. As you can see, natural numbers are starting from 1 to many numbers. Okay, and the whole number will start from 0. Collection of these all the numbers along with 0 will be whole number. And what if we count numbers from this only? This part will be the natural numbers. Natural numbers, no, collection of numbers without 0 will be natural numbers, and collection of numbers with 0 will be whole number. Okay, 0 is a whole number. Okay, so currently we are talking about positive numbers only, so don't get confused with negative and positive numbers. We will talk about only positive numbers. Okay, so next is, now let us understand this pic. What if I ask you, चलो इस पिक्चर को ध्यान से समझो और मेरे सवालों का जवाब दो, है ना? अगर मैं इस 2 नंबर को देखो, 2 दिख रहा है ना? ये 2 को देखो, ठीक है? हमने कुछ ब्लॉक्स एक सीरीज़ में जमाए हुए हैं, ठीक है? और आपको देखना है 2 की तरफ. मैं कहूँगा कि 2 के बाद वाला नंबर कौन सा है, तो आपको बताना है 2 के बाद कौन सा नंबर है. और जब मैं पूछूंगा कि 2 के पहले कौन सा नंबर है, तो आपको बताना है 2 के पहले वाला नंबर. ओके, तो 2 के बाद कौन सा नंबर है? तो 2 के बाद हमारा जो नंबर है दैट इज 3, है ना? 2 के पहले कौन सा नंबर रखा हुआ है? दैट इज 1. तो जिस नंबर पे हम फोकस्ड हैं उसके बाद वाले नंबर को कहते हैं सक्सेसर, और जिस नंबर पे हम फोकस्ड है उसके पहले वाले नंबर को हम कहते हैं प्रेडेसेसर. तो आइए इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं. सक्सेसर ऑफ एनी नंबर इज द नेक्स्ट नंबर टू इट विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1. ठीक है, सक्सेसर किसी भी नंबर का सक्सेसर उसका नेक्स्ट नंबर होता है, जो कि हमें प्राप्त होता है किसकी वजह से? उसी नंबर में 1 ऐड करने से. ओके, सो सक्सेसर ऑफ द नंबर, देखिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है. सक्सेसर ऑफ द नंबर 12 इज 12 + 1 विच इज 13. अंडरस्टूड? नाउ लेट अस मूव ऑन टू प्रेडेसेसर. द प्रेडेसेसर ऑफ एनी नंबर इज द प्रीवियस नंबर टू इट. किसी भी नंबर का प्रेडेसेसर वो होता है उसके पहले वाला नंबर, विच इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 1, है ना? उसी नंबर में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कौन सा नंबर आएगा? प्रेडेसेसर नंबर आएगा. ठीक है, प्रेडेसेसर मिलेगा हमको उस नंबर का. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. नाउ हियर इज सम क्वेश्चन दैट आई वांट टू एक्सप्लेन यू. लेट अस ट्राई टुगेदर.
तो हमें क्या निकालना है, राइट नेक्स्ट 3 सक्सेसर्स ऑफ 999, 999 के नेक्स्ट 3 सक्सेसर्स हमको लिखने। तो अब ध्यान देना, इसकी एक ट्रिक समझो। ये आपको फेयर कॉपी या एग्ज़ाम में नहीं करना है, ये आपको सिर्फ रफ कॉपी में या रफ वर्क में करके देखना है, ठीक है। So 9 we will write the given number at left most of the page or copy or line whatever it is. Now successor is +1 है ना, सक्सेसर क्या होगा +1। तो ये हमारा 999 में 1 ऐड करने से हमें मिल गया 1000। अब हमें ये तो फर्स्ट मिल गया, अब 2 और चाहिए। तो 2 और क्या होंगे, ऑब्वियसली +1 और +1, तो अल्टीमेटली +1 और +2। तो हमारे नेक्स्ट जो 2 होंगे वो क्या होंगे, 1001 एंड 1002, ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट नेक्स्ट 3 प्रेडेसेसर्स ऑफ 999। अब प्रेडेसेसर जब भी निकालना है ना हमको, तो राइट मोस्ट ऑफ द लाइन में हम नंबर को लिख लेंगे 999, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, -1 करेंगे, -1, तो हमारा आ जाएगा 998, है ना। अब ध्यान रखना, जब भी हम 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा यूनिट प्लेस वाले डिजिट में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो 998 नेक्स्ट आ जाएगा 997 एंड देन नेक्स्ट विल बी 996, ठीक है। सो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दीज 2 क्वेश्चंस। ओके, अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, नंबर लाइन। Number line is a infinitely long line containing all the whole numbers. नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसपे सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। एंड द नंबर लाइन स्टार्ट्स विद 0। सारे होल नंबर्स होते हैं, मतलब डेफिनेटली 0 से तो स्टार्ट होगी 1 से तो स्टार्ट होगी नहीं, है ना। तो यहाँ पे नंबर लाइन 0 से ही स्टार्ट होगी, कोई सी भी नंबर लाइन हो 0 से ही स्टार्ट होती है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। Now we will do some operations on number line. Let us consider a question that is 2 plus 2, ठीक है। We are taking a question by ourselves, 2 plus 2 we have to do on number line. Okay, how we will do, let us understand। 2 plus, यहाँ लिख देता हूँ यार मैं। तो first we have to focus on 2. Consider you are standing on 2. Now you need to move 2 steps ahead of 2. Okay, 2 steps आगे जाना है आपको 2 से। कैसे जाओगे, 1 2, कहाँ पहुँच गए, what is your destination now? So our destination is 4. So what will be our answer? Our answer will be 4. Now we will subtract, ठीक है। Now I am taking another question of subtraction on number line, which is 5 subtracted by 2, sorry 2 subtracted by 5। ओके, तो हमें कहाँ 5 में से 2 माइनस करना है ना, तो फोकस कहाँ होना है, स्टैंड कहाँ करना है, वी विल बी स्टैंडिंग ऑन 5 नंबर। 5 नंबर पे स्टैंड हो जाओ, स्टैंड ऑन 5 नंबर, है ना। एंड नाउ स्टेप टू टेक 2 स्टेप्स बैकवर्ड्स। ओके, बैकवर्ड्स मीन इन द लेफ्ट डायरेक्शन, 1 2, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 1 एंड देन 2, ठीक है। तो 2 स्टेप्स बैक, तो 5 यहाँ -1 और यहाँ सेकेंड स्टेप पे भी -1, टोटल मिलके 2 स्टेप्स पीछे है, मतलब 2 हमने माइनस कर दिया। तो अल्टीमेटली व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन नाउ, आवर डेस्टिनेशन इज 3, देयरफॉर आवर आंसर विल बी 3। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। Now I think everyone have understood. At last of this lecture I will give you some exercise questions that you need to solve by yourselves. Okay, now let us solve exercise number 2.1.
So I think everyone is visible to this exercise. So in the first question, let me explain you. You have to solve this on your own. I am explaining all the questions. You have to write the next three natural numbers after 1099. First question. तो 10999 मतलब 10,999 के बाद आपको नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स लिखने हैं. मतलब इसके कितने नेक्स्ट थ्री सक्सेसर्स आपको लिखने हैं. ठीक है, क्वेश्चन वही है सक्सेसर वाला. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. राइट द थ्री होल नंबर्स ऑकरिंग जस्ट बिफोर 10,001. 10,001 के तीन प्रेडेसेसर्स लिखने हैं. यहाँ पे प्रेडेसेसर्स लिखने हैं और यहाँ पे सक्सेसर लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में सक्सेसर, सेकंड क्वेश्चन में प्रेडेसेसर. अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर. स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा 0 और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा 1. हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. Now this is your homework. Question number 5 and question number 6 is your homework. You need to solve it on your own and send back to me with your answers. Okay. Now let us move on to question number 7 and 8. देखो इसमें आपको लेस देन ग्रेटर देन बताना है. सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बताना है, लेस देन ग्रेटर देन बताना है. ओके, सो व्हाट यू विल डू, you will observe the first you will observe the number of digits and then you will observe the magnitude of the digits. Okay, now the 8th question is true false. Okay, so 5th and 6th question were successor and predecessor. I think you can do it on your own. If you have any doubt you can revert back to me. I'll solve your doubts. Okay, so this is the end of our class. If you have any doubts you can revert back to me. चलो.